Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. This is a new setup, guys. And it was important because few of you were suggesting and commenting on the video that I should make a video about the IET exam. So, as you say, officer, we are here with the video. And guys, please hear me out. When I was researching about this exam, I find it very amazing. Just let me prove myself in the next 5 to 10 minutes. I'll do that. Okay, so when I was in class 12th, I was very unaware about this exam. I didn't know about this. And this year, my brother is also in class 12th. So I am forcing him to fill this exam form. He's preparing for JEE Mains and JEE Advanced, but I am going to force him to fill this exam form and he must be watching this video now. So yeah. So you people are also like my younger sibling, so I'll suggest you the same as I'm doing for my brother. So IAT exam, that is the ICERS aptitude test exam, and this exam is basically conducted by ICERS only. So ICERS are basically the Indian Institutes of Science, Education and Research. So they are basically primarily the research institute. And in India we have seven ICERS in total, and they are government institutes only. So guys, pay attention because जो IAT exam है उसका date is already being announced. It's going to held on 25th of May 2025 at 9 a.m. So dates are already out, but application form अभी out नहीं हुआ है, and I'll eventually give you the information कि कब होगा कैसे होगा. So stay tuned for that. So let's start. So guys, जो IIT एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिमिलर पैटर्न में जिस तरीके से आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा. अगर नहीं भी दिया है तो भी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपका जो है पेपर आएगा. जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, 240 मार्क्स का आएगा. 240 मार्क्स में 60 क्वेश्चंस होंगे. 60 क्वेश्चंस, 240 मार्क्स एंड 15 क्वेश्चंस. 15 क्वेश्चंस बायो से, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथमेटिक्स एंड 15 फिजिक्स. एंड अब आपको बहुत बड़ा एक डाउट होगा कि अब मेरे पास देखो तीन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे. फर्स्ट वुड बी कि जिनके पास ट्वेल्थ में पीसीएम थी, सेकेंड वुड बी जिनके पास पीसीबी था, एंड थर्ड वन वुड बी जिसके पास पीसीएमबी, चारों चीजें थी. सो इस टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास इन चारों में से, इन तीनों कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, बट 15 क्वेश्चंस इन चारों ही सब्जेक्ट से आएंगे. Right, so it's important for you to study. If you have just PCM, so bio आपको अपनी तरफ से पढ़ना पड़ेगा, right? And I'll discuss the syllabus as well, so don't worry about it. But this is the pattern of the paper कि 60 questions आएंगे, 240 marks का होगा. Let be very very clear about this thing. And 3 hours का पेपर होगा आपका, right? 3 hours का पेपर होगा, that is 180 minutes होंगे. So अगर आप divide करते हो, so for one question you have 3 minutes, right? For one questions you have 3 minutes. 60 questions है, 180 minutes है total, right? तो अब आप अगर देखें, अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, सो यू नो द वैल्यू ऑफ दीज 3 मिनट्स. एंड अगर एक क्वेश्चन 3 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है, सो डिफिकल्टी आप अपने आप अभी इमेजिन कर सकते हो. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट यू आर स्टेपिंग इनटू, राइट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप का आपके क्वेश्चंस होंगे, एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स. And for each incorrect answer, deduction of 1 mark. So negative marking भी है. For unanswered question 0 marks. Okay, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो उसके लिए आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. टोटल मार्क्स वुड बी 240, एंड जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे रैंक लिस्ट प्रिपेयर होती है, एंड उस रैंक के बेसिस में आपका एडमिशन होता है टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीट मैट्रिक्स. सो नाउ अगर अब आप इसमें देखें, सो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 7 आइसर्स हैं, राइट? सो फर्स्ट वन इज आइसर्स बहरमपुर. बहरमपुर इज इन उड़ीसा. आइसर भोपाल, दिस इज इन मध्य प्रदेश. आइसर कोलकाता, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस. आइसर कोलकाता में अब ये यहाँ पे दूसरा इंस्टीट्यूट इज बिकॉज आइसर कोलकाता में कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस का एक अलग कोर्स है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बता रखी है उस इंस्टीट्यूट की, एंड ये जो मैंने डेटा लिया है दैट इज totally available on the website of ICER aptitude test. So if you want you can visit. I'll give the link down in the description. So these all these things are very well authorized. इसके बाद next ICER is ICER Mohali, then ICER Pune, ICER Tirupati and ICER Tiruvananthapuram, राइट? सो ये सारे आपके BSMS प्रोग्राम के लिए है. अगर अब आप सीट्स देखें, दिस फॉर BSMS प्रोग्राम. सो BSMS प्रोग्राम आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होगा फॉर बैचलर्स एंड प्लस मास्टर्स, एंड ये 5 साल का प्रोग्राम होगा गाइस आपका, ठीक है?
इसके अलावा जो डिफरेंट और प्रोग्राम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट ओनली, दैट इज बीटेक और बीएस प्रोग्राम में भी एडमिशन होता है, बट वो सर्टेन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए ही है। जैसे कि अगर आप आईसर भोपाल में बीटेक अगर आपको करना है, सो सिमिलर टेस्ट से आप कर सकते हो। देन आईसर भोपाल में बैचलर्स ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक साइंसेज भी आप कर सकते हो, एंड तिरुपति में BS in इकोनॉमिक साइंसेज एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज। सो एंड उसकी रिस्पेक्टिव सीट्स अब आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर आपको कोई टॉप आइसर्स पूछे, सो टॉप आइसर में हमारे पास आइसर पुणे आता है सबसे पहले, इट्स द टॉप आइसर। देन वी हैव आइसर भोपाल, आइसर कोलकाता, and these three are the major ones. इसके बाद almost same है, also the location would also play a very important role when you're choosing which ICER to opt, but these three would be my priority ones, right? Also because ICER Pune oldest है, so that is also one of the criteria that you should look into. ओके, सो टोटल सीट्स अगर अब आप यहाँ पर देखो तो दैट इज 2363, सो अराउंड 2000 जो है सीट्स है। सो गाइस अगर मैं आपको एक डेटा शेयर करूं, सो 2024 में, ये भी आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, 2024 में अराउंड 40,000 बच्चों ने ये वाला पेपर जो है वो फिलअप किया था। एंड उसमें से अगर हम सीट देखें, सो नंबर ऑफ सीट्स जिस पे एडमिशन होता है दैट इज 2000, राइट? सो अगर आप एक्सेप्टेंस रेट देखो, दैट इज अराउंड 5% एक्सेप्टेंस रेट है, राइट? एंड अगर हम आईआईटी से कंपैरिजन करें, सो आईआईटी का जो एक्सेप्टेंस रेट होता है दैट इज 1.2 या 1.3% के आसपास होता है। सो आप अपने आप कंपैरिजन कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप ये वाला फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, राइट? दैट इज नॉट समथिंग आई एम ट्राइंग टू पुट इनटू योर माइंड, बट आई एम सेइंग दैट इफ देयर इज such great opportunity available, so you should have at least give it a try. That's what I'm saying, right? So these are the seat matrix for the BSMS program, guys. And for BS programs just this institute mein hai, you can see over here. Also द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसके अलावा कि आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट से सिर्फ आइसर्स में एडमिशन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आईआईटी एग्जाम के भी इसी एग्जाम के बेसिस पे आपका दूसरे इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन होता है। एंड वन ऑफ द इंस्टीट्यूट वाई मेकिंग दिस वीडियो इज दैट आपका बैचलर्स ऑफ साइंस दैट इज बीएस प्रोग्राम में आपका एडमिशन आईएससी बैंगलोर में हो सकता है। एंड यू नो द I don't have to tell you about the ranking of this institute and the how prestigious is the ISC, right? I don't have to compare, but I'm just saying that if giving this exam can take you to the most prestigious institute of this country, so you should give it a try. That's what I'm trying to say. And इसके अलावा even in IIT Madras में if you want to opt for BS Medical Sciences and Engineering program, उसमें भी same exam के through admission होता है। बट उसके लिए this is very important guys, please hear me out. First thing आपको ICER की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। बट जब आपका एग्जाम हो जाएगा एंड जब आपकी रैंक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको IIT मद्रास एंड IISc की पोर्टल पर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा दैट यू वांट टू टेक पार्ट इन फॉर द बीएस प्रोग्राम एंड फॉर दिस बीएस मेडिकल एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एंड दैट इज समथिंग दैट विल लुक अप व्हेन द एग्जाम इज ओवर एंड जब आपकी रैंक लिस्ट आ जाएगी एंड आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर आपको आईएससी के अंदर एडमिशन लेना है या आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना है, सो आपको आइसर के अलावा ये वाले फॉर्म सेपरेटली फिल करने पड़ेंगे। एंड ये वाली चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे बोल्ड में लिख रखी है, सो सुन लो अभी, फिर बाद में नहीं बोलना कि ये वाली बात तो हमें पता नहीं थी। एंड फॉर लिंक्स देयर आर लिंक्स एंड आई विल पुट द लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो अब यहाँ पर देखो ये वाली चीज एक सिंपल सी चीज है, मैंने जो आपको बताई कि आईएससी में भी इसके थ्रू एडमिशन होता है, बट इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। दिस इज टेकन फ्रॉम आईएससी की वेबसाइट इटसेल्फ। सो देखो सिंस हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो प्रायर क्वालिफिकेशन दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th क्लास आपको पास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और इससे पहले 2-3 साल पहले एक एग्जाम होता था KVPY करके, उसके बेसिस पर भी आईएससी के अंदर एडमिशन होता था। बट अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट और जे एडवांस, तो पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, जे एडवांस के बेसिस पर आपको बीटेक के अंदर एडमिशन मिलता है। ऑल्सो जे एडवांस या आईआईटी एग्जाम के बेसिस पर आपको बीएस प्रोग्राम दैट इज बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च के अंदर एडमिशन मिलेगा। एंड
आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो, दैट इज इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंट स्टडीज, मटेरियल्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बट गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे छोटे से नोट में लिख रखी है, दैट इज कि क्लास 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, राइट। आईएससी के अंदर अगर आपको बीएस रिसर्च में एडमिशन लेना है, तो आपके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर आईएससी गाइस, राइट। अभी तक आईएसआर के क्राइटेरियाज हमने अभी देखे नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आईएससी, कि आईएससी के अंदर अगर आपको बीएस प्रोग्राम किसी भी, अगर आपको आईएससी बायोलॉजी में भी बीएस में एडमिशन लेना है, तो भी आपके पास पीसीएम होना जरूरी है इन योर क्लास 12th। गाइज ये तो हो गया सिर्फ आईएससी के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अगर हम आईएटी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, सो देखो, फर्स्टली यू शुड बी इंडियन नेशनल, मतलब आपको भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा क्लास 12th आपने पास होनी चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से या फिर आप स्टेट बोर्ड से हैं, दैट शुड बी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड योर स्कूल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, COBSE। सो इसको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप हो, तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, कि अगर आप इस साल पास आउट हो रहे हो, दैट इज 2025 में, अगर आप 12th के एग्जाम्स दे रहे हो, सो यू आर एलिजिबल। एक साल जिनका ड्रॉप हुआ है, दैट इज 2024 वाले कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। एंड जिनका 2 साल ड्रॉप है, दैट इज जिन्होंने 2023 में 12th क्लास अपना कंप्लीट किया था, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। जो क्राइटेरिया है जो मैंने आपको अभी बताया, कि दे मस्ट हैव एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, या तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी या फिर चारों होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया इन योर क्लास 12th, आपके पास ये 3 सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर, जैसे अभी पीछे आपके पास मैंने आपको बताया था, इसके अलावा गाइज जैसे अभी हमने देखा कि आईएसटी में मैथमेटिक्स होना इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी कोर्स दैट यू आर ऑप्टिंग। बट यहाँ पर जैसे आपके पास जो बीएसएमएस कोर्स था डेटा साइंस वाला इन आईसर कोलकाता, उसके लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। आईसर भोपाल वाला जो बीटेक प्रोग्राम है उसके लिए, एंड 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है इकोनॉमिक साइंसेज आईसर भोपाल में। एंड जो एक्स्ट्रा कोर्सेज आपको सीट मैट्रिक्स में आपको दिख जाएंगे, उनके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। सो डू चेक दिस, लाइक डू गिव इट अ गुड रीड when you are opting for the courses, right? एंड इसके अलावा द परसेंटेज जो क्राइटेरिया है, अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो, सो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 60% मार्क्स या उससे ऊपर आपका होना चाहिए, इफ यू वांट टू गेट eligible for this exam, or if you want to fill up this form, so you need at least 60% or 55% if you belong to SC ST or PWD category, right? This is one of the eligibility criteria, ये आपको fulfill करना जरूरी है if you want to get admission. सो अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया एंड उसके बाद आपका एडमिशन भी हो गया, बट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है बाद में। सो दीज थिंग्स यू हैव टू फुलफिल, राइट। अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है एंड ये वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। अब देखो, एप्लीकेशन पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट वीक ओपन हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, टू गेट दिस वीडियो आउट ऑन 3rd of March, बिकॉज मेरे को पता है यू विल बी लाइक, आई वॉन्ट यू पीपल टू गिव इट अ गुड थॉट, एंड अपनी तरफ से भी आप रिसर्च कर पाए, इसलिए आई एम गिविंग यू 1 week टू प्रॉपरली मेक अ थॉट अबाउट इट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर गाइज। 10th of March से 15th April तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये करेक्शन विंडो के बारे में आपको बता रखा है। एंड आपका एग्जाम, जैसा कि मैंने बताया, कि 25th of May को है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का एग्जाम होगा। एंड हॉल टिकट्स, दैट इज योर एडमिट कार्ड वगैरह, आपका 15 मई तक आ जाएगा। एंड आंसर कीज एंड एडमिशन वगैरह वो बात का प्रोसीजर है, बट अभी यू शुड फोकस ऑन मेनली ऑन कि आपको फॉर्म फिलअप करना है एंड आपका एग्जाम कब है, राइट। देन इसके अलावा अगर नेक्स्ट चीज़ हम देखें, एप्लीकेशन फीस, तो अगर आप SC ST एंड कश्मीरी माइग्रेंट या फिर कश्मीरी हिंदू या PWD कैटेगरी से है, तो आपकी जो फीस होगी एप्लीकेशन की, दैट इज 1000 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप जनरल, EWS, OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो 2000 रुपीज़ विल बी द एप्लीकेशन फीस। एंड फॉर दोज पीपल हु आर अप्लाइंग अंडर फॉरेन नेशनल कैटेगरी, जो इन भारत के नागरिक नहीं है, उनके लिए 12,000 इज द एप्लीकेशन फीस। एंड ये एप्लीकेशन फीस गाइज नॉन रिफंडेबल है। ऐसा नहीं है कि अब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया बट आपको बाद में एडमिशन नहीं लेना है, तो ये फी आपको वापस नहीं करी जाएगी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट चीज इज रिजर्वेशन पॉलिसी। तो गाइस, रिजर्वेशन पॉलिसी एज
these are very common reservation policies. तो अगर आप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस शुड बी मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपके पास स्टेट का अपना SC ST या OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा प्लीज, या अगर आप बनवा सकते हो सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक सेंटर वाला सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। सो SC वाले बच्चों के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए NCL इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, OBC NCL लगेगा। एंड OBC NCL जो है आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला बना हुआ होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड 27% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है। देन PWD विद 40% इम्पेयरमेंट के लिए 5% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स पर आइसर, दीज आर रिजर्व्ड। एंड EWS के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। सो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ गुड रीड किस तरीके से। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से, सो मेक श्योर कि आपका जो सर्टिफिकेट है आप NCL बनवाओ और वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। सो ये नहीं है कि आप 29 मार्च का लेके घूम रहे हो, नहीं। अगर वो है तो 31 मार्च के बाद का ही बनवाना, 1 अप्रैल को ही बनवाना, अभी मत बनवाओ, तभी अप्लाई करना। सो ये हो गया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सब सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज पेपर में क्या आता है। हमने एलिजिबिलिटी देख लिया, चलो ठीक है हम एलिजिबल हैं, हमने डेट देख ली 25 मई को हमारा पेपर है, कहाँ कहाँ हमें एडमिशन मिल सकता है, कि 5% एक्सेप्टेंस रेट है, सारी चीजें हो चुकी है। अब है कि पेपर में क्या आएगा। तो गाइज इन्होंने बहुत प्यार से अपना सिलेबस लिखा हुआ है। दैट सिलेबस जो है दैट इज टोटली NCERT सिलेबस है आपका। क्लास 12th एंड 11th, मोस्ट प्रॉब्ली 11th एंड 12th का जो NCERT सिलेबस होगा वो आएगा। बट ऑफकोर्स दैट इज समथिंग विच इज नॉट दैट इनफ। सो एक तो जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू गो चेक दैट आउट। एंड ऑल्सो पिछले 3 साल के जो PYQs है दैट इज 2024 का PYQ, 2023 का एंड 2022 का जो PYQ पेपर है, जिससे आप थोड़ा डिफिकल्टी पता लगा सकते हो किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट वेरी क्लियरली, उसमें मेंशन होंगी सारे लिंक्स। सो उसको अच्छे से खोल के देख लेना प्लीज। सो दिस इज ऑल आई कुड गेट अबाउट IIT एग्जाम। सो अब अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं आपको, सो गाइस अब आप कंक्लूजन का पूछे, सो कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स जो मेरे हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम दैट इज IIT। सो IIT में एक बार ध्यान से, अगर अभी तक भी कान बंद करके बैठे तो दोबारा से सुन लो। IIT एग्जाम इज द आइसर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आपका एडमिशन जो है इस एग्जाम के बेसिस पर आइसर्स के अंदर होगा। इसके अलावा ISC के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज IIT मद्रास के एक कोर्स के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि कहाँ का आपका एडमिशन हो सकता है। आपका एग्जाम जो है दैट इज ऑन 25 मई 2025 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। जो एग्जाम का सिलेबस है, कोर आपका 11th एंड 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है इन NCERT वो आएगा। बट अगर आपको टॉपिक्स पता लगाने हैं कि किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है फ्रॉम द ऑथराइज वेबसाइट ऑफ IIT। सो आप उसको चेकआउट कर सकते हो फॉर डिटेल्ड सिलेबस। गाइज चेक द डिस्क्रिप्शन, राइट। अब मैं वो खोल के आपको एक एक पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना इफ यू वांट द डिटेल्ड सिलेबस फॉर दिस। एंड अगर अब आप देखो, टुडे इज 3rd of March व्हेन आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, एंड आपका जो एग्जाम है दैट इज ऑन 25th of May, सो अराउंड 2.5 से 3 months है। सो आई थिंक there was one girl जो she commented if I should take a drop, so I would say कि don't take a drop and don't think about drop अभी से। अभी गिव एवरीथिंग टू दिस एग्जाम। आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं, आपको 11th और 12th की NCERT ही फुलफिल करनी है, सिर्फ 60 क्वेश्चंस आएंगे। सो आई थिंक बिफोर लाइक इवन ट्राइंग फॉर दिस एग्जाम यू शुड नॉट थिंक अबाउट ड्रॉपिंग। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू गाइज। ऑफकोर्स यू हैव अगर किसी को है कि नहीं मेरे को JEE मेन्स ही देना है, दैट इज वेरी डिफरेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट IIT एग्जाम ओवर हियर। सो आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं, एंड इफ यू वांट अ लाइक अ स्ट्रैटेजी वीडियो, सो एक कमेंट छोड़ देना ताकि आई शुड नो दैट पीपल वांट टू सी दिस, सो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो ये है। इसके अलावा सिलेबस के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट कि एलिजिबिलिटी में एक बार रिपीट कर दूं तो मैं बता देती हूँ फिर से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आई एम
लाइक एज्यूमिंग कि आप वो फुलफिल कर रहे हो। इसके अलावा जो मेन बात थी कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC या ST कैटेगरी से, एंड 60% से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल या बाकी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है कि आपके पास 12th क्लास में या तो PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा आपकी जो क्लास 12th आपने जो पास करी है वो 2025, 2024 या 2023 में आप पास आउट होने चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड यही मैंने इसमें मेजरली डिस्कस किया है इस पूरी वीडियो में। सो मैं पूरी वीडियो का जो सार है आप को इस पेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, दैट इज कि 10th ऑफ मार्च से आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, 10th ऑफ मार्च 2025। सो मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग अप दिस फॉर्म, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। 2.5 महीने अगर आप मेहनत करके अगर आप एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हो, सो दैट इज worth trying, right? That is all I'm going to say, and I hope I was able to clear majority of your doubt. PYQs and आपका syllabus मैंने description में डाल दिया है, so वहाँ से आपको मिल जाएगा। And if you are left with any kind of doubt, do comment down this video. I'll try to reply to you as fast as I can. And if you want another kind of video, so do comment that too. And I'll meet you on next Monday then. See you. Bye bye. Take care.